সুদীৰ্ঘ 7 মাহৰ অন্তত মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে অসমৰ যুৱক। নলবাৰী জিলাৰ কৈঠালকুছিৰ ভুক্তভোগী যুৱক দীপজ্যোতি বৰ্মন মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে। ৰঙিয়া ৰেল জংচনত উপস্থিত হৈছে ভুক্তভোগী যুৱকজন। সুদীৰ্ঘ 7 মাহৰ অন্তত মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে অসমৰ যুৱক। তামিলনাডুত মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে অসমৰ যুৱক। সুদীৰ্ঘ 7 মাহৰ অন্তত ৰঙিয়া জংচনত উপস্থিত হৈছে নলবাৰীৰ কৈঠালকুছিৰ ভুক্তভোগী যুৱক দীপজ্যোতি বৰ্মন। কাম দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ৰঙিয়াৰ মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই বিক্ৰী কৰিছিল জম্মু কাশ্মীৰত। শিৱসাগৰৰ অলকা কলিতা নামৰ এগৰাকী মহিলাই ট্ৰেইনেৰে লৈ গৈছিল জম্মু কাশ্মীৰলৈ। জম্মু কাশ্মীৰত এগৰাকী চিকিৎসকে ক্ৰয় কৰিছিল দীপজ্যোতিক। বিনা বেতনে নিয়োগ কৰিছিল বাচন ধোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰৰ সকলো কাম কাজত। কিন্তু মজুৰি বিচাৰিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে শাৰীৰিক তথা মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিল যুৱকজনক। ৰঙিয়াৰ ৰেলৱে ষ্টেচন সমীপৰ কৰৰাৰ মানৱ সৰবৰাহকাৰী নজৰুল ইছলাম উৰ্ফে পকেট নামৰ এজন লোকে এজেন্সিক গতাই দিছিল দীপজ্যোতিক। ইয়াৰ বিনিময়ত দীপজ্যোতিয়ে পাব লগা এবছৰৰ মাহিলী বেতন আগতীয়াকৈ লৈছিল মানৱ সৰবৰাহকাৰী পকেটে। কিন্তু ভুক্তভোগী দীপজ্যোতিৰ অজ্ঞাতে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা তামিলনাডুলৈ নি এটা ঘৰত আবদ্ধ কৰি দীপজ্যোতিৰ হতুৱাই কৰাই গৈছিল সকলো কাম কাজ। 7 মাহে বিনা বেতনে কাম কৰা দীপজ্যোতিয়ে অৱশেষত ৰঙিয়াৰ SSBৰ 24 বেটেলিয়নৰ সহযোগত আৰু তামিলনাডু ৰেলৱে আৰক্ষীৰ সহযোগত আহি উপস্থিত হয় ৰেলৱে জংচনত। ৰঙিয়া ৰেলৱে জংচনত আহি উপস্থিত হয় দীপজ্যোতিয়ে। SSBয়ে ইতিমধ্যে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি মানৱ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ইয়াতে পকেট বুলি যে কয় সেইটো আৰু অলকা কলিতাই লৈ গৈছিল। লৈ যায় দিল্লীলৈকে লৈ কাম দিম বুলি লৈ গৈছে, দিল্লীলৈকে লৈ গৈছে, দিল্লীৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰলৈকে লৈ গৈছে। তাতে আমাক কাম দিছে, কাম মানে কি সেই বেলেগ কাম মানে ঘৰৰ কাম কৰিব লাগে, তাতে মানে বিক্ৰী কৰাৰ নিচিনা কৰে। আৰু মূলত 3টা ছোৱালী গৈছিল। এনেকৈ আমি গোটেইকেইটা থকাৰ পিছত তাতে মানে বাচি লৈ যায়, এইটো মোক লাগব এনেকৈ লৈ যায় পেলাই ঘৰৰ কামত লগাই দিয়ে। 1 বছৰৰ কিবা এগ্ৰিমেণ্ট কৰে, আহিব নেদে, তাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই নেদে। তাৰপিছত তাৰ পৰা মোক লৈ গ'ল ডক্টৰটোৱে এইটো চেলেম তামিলনাডু তাতে লৈ গৈছে। তাতে লৈ যায়, তাতেও কাশ্মীৰ বুলিয়ে কৈ আছে, পাহাৰী এলেকা, সেইটো মই নাজানো। তাৰপিছত তাৰ পৰা মই কিবা কৰি গুচি আহিছোঁ। হামিদ বোলা মানুহ এজন আছে, তেখেতক DY36 পাইছোঁ মই, পাই তেখেতক মেছেজ কৰিছোঁ যে মোক এনেকুৱা হেল্প কৰক। তেখেতে এনেকুৱাখিনি নম্বৰ দি পেলাই হেল্প কৰিব। কিমান দিন থাকিলা তাত? जो अपना आपका जो चैनल है डे 65 के वहाँ के एक जो पत्रकार हैं गोस्वामी जी, उन्होंने मेरे से संपर्क किया और आपके थ्रू संपर्क किया इन्होंने कि एक बंदा है आपका ऐसे। तो हम लोग रंगिया स्टेशन में पिछले विगत वर्षों से 3-4 वर्षों से कम 20 ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस रेस्क्यू किया, जिसमें करीब 60-70 माइनर्स गर्ल्स बॉयज़ को रेस्क्यू करके यहाँ पुलिस के हैंड ओवर करके उनको सुरक्षित घर पहुँचाया। उसी सिलसिले में इन्होंने एक न्यूज़ लाइक किया, न्यूज़ लाइक करके इन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि मैं मुश्किल में फंसा हुआ, और ये इन्होंने हेल्प मांगा आप लोग से। और हेल्प मांगने के बाद हमसे आप लोग ने कॉन्टैक्ट किया और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ, तो पता चला ये यहाँ से पहले दिल्ली गए थे, जो कि पॉकेट नजरुल अली है, उसके प्लेसमेंट एजेंसी के तहत वो कोई अलका कलिता करके लेडीज है, जो इनका लिंक चैनल है, जिसका पति अविनाश वो दिल्ली में कार्यरत है, और वो दिल्ली में रहते हुए यहाँ से इनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, और वहाँ से विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों में इनको पैसा लेके, मोटा रकम लेके इनको भेज दिया जाता है, जो कि ये उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं कि इनको जाना कहाँ है और करना कहाँ है। फिर दिल्ली से इनको जम्मू कश्मीर ले जाया गया, और जम्मू कश्मीर से लड़कियों को जम्मू कश्मीर में डिपोर्ट किया गया। इनके साथ 5 आदमी का ग्रुप था, जिसमें 3 लड़की बागानी 2 बागानी लड़की थी, और उसके बाद से ये अलग हो गए। और यहाँ से दिल्ली जम्मू कश्मीर में तमिलनाडु का एक डॉक्टर नजरुल शेख या कुछ भी वो जो कार्यरत था, वो इसको वहाँ से बोली लगा के इसको अपना घर हाउस वर्कर के रूप में इसको सलेम ले गया।
जहां से भाई को 7 महीने तक का लिए कोई पेमेंट नहीं दिया गया और मानसिक और आर्थिक इसका शोषण किया गया। ये बंदा बिल्कुल विक्षिप्त हो रखा था और ये आत्महत्या तक करने का मजबूर था और बोला सर आप लोग हेल्प नहीं करेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यहाँ तक की बड़ी मजेदार कहानी है, जब ये तमिलनाडु स्टेशन में सलेम में आया, जब मैंने इसको आरपीएफ के पास हैंड ओवर कर दिया तो जो मेन इनके जो ये थे जो जिनके घर में ये काम करता था वो 3-4 आदमी भी इसका पीछा करने के लिए भेजे, जिसका कि भाई के पास वीडियो है, तुमको पीछा करने के लिए भेजा और भाई ने किसी तरह अपना जान बचाते हुए आरपीएफ की मदद से जो वहाँ इन्होंने काफी कोऑपरेट किया और हम लोग ने पिछले 4 दिन और रात के प्रयास से और आज इसको सुरक्षित इसको हम लोग ने यहाँ अपने घर वापसी करवाया है, जो कि भारत का एक कोना से लेके एक लास्ट कोना तक ले आया है। और मैं चाहता हूँ कि अभी बचा हुआ जीवन ये परिवार के साथ अपना व्यतीत करे और अपने माँ और भाई परिवार से ये मिले और आगे इसको जो भी काम मिले वो रंगिया में मिले, जिससे अपना जीवन। ये पूरा प्रक्रिया है कि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 24 बटालियन रंगिया हमेशा से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम कर रही है और चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में स्मगलिंग हो वुमेन्स का या बॉन्डेड लेबर हो जैसे बेगार जिसमें कि कोई पैसा नहीं दिया जाता है, इन सारी चीज़ों पे काम कर रही है। और यहाँ स्टेट साइड में काफ़ी अच्छी सक्सेस भी हमें इसमें मिला है, खास करके रंगिया स्टेशन पे ही कई लोगों को पकड़ा गया है और अभी इस केस में हमें संयम से एसएसबी को एक कॉल आया कि उनको वहां पे ले जाया गया है और उनसे काम करवाया जा रहा है, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है और उन्होंने कांटेक्ट किया एसएसबी से। तो फिर एसएसबी ने उन्हें कहा कि आप वहां रेलवे स्टेशन ज्वाइन करिए। आरपीएफ से वहां बात किया और उसके थ्रू इनको फिर यहाँ अभी मंगवाया गया है और जैसा ये नाम बताएंगे उनके खिलाफ एफआईआर किया जाएगा। आगे का जो कार्रवाई है वो कैसे आगे बढ़ाएंगे आप लोग? आगे की कार्रवाई सर्वप्रथम एफआईआर किया जाएगा, उसके बाद उसको इनको घर पहुंचाया जाएगा और इनको अपने परिवार वालों से मिलाया जाएगा। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक बड़ी सफलता है, एक मानवता की जीत होगी।